All videos on. Come on. Let's begin. All of you take sum number 28. Sum number 28. 28th problem. All of you take that. See 28. In the books of Bipin, in the journal of Bipin, sum number 28. In the journal of Bipin, 28. Sum number 28. All of you take that. Okay, let's start. Sum number 28 in the journal of Bipin. Started business with cash 2,25,000, goods worth 50,000 and laptop of 45,000. Heer Patel, you tell me the entry. Yes. Yes. Cash account debit, purchase या फिर goods account debit, goods या purchase account debit, then laptop account debit to what? Capital account. बराबर है? Cash, stock, laptop to capital. Cash में कितना आएगा? तो 1,20,000. Goods are 2 lakh. Cash is 2,25,000. Goods are 50,000. Laptop is 45. What is your total? I think it is 2 lakh. 3,20,000. बराबर है? Being cash, goods, laptop introduced in business as capital. Cash, goods, laptop introduced in business as capital. This is on 1st of June 2011. बराबर है? Sir, can you move your camera a bit? Sorry, 1st July. Yeah. Okay. 1st of July. 1st of July. 1/7/11.
कैश स्टॉक लैपटॉप या कैश परचेज लैपटॉप टू कैपिटल. Very good. Why did we debit that? Because cash is what? Asset. Okay, purchase expense या goods asset. Goods लिया तो asset, purchase लिया तो expense. Increases so debit. संभाल के. And laptop is also what? Asset. Okay, cash, goods, laptop to capital. Capital बढ़ा तो credit. Very good. Bought goods on credit from Manish of 10,000 at 10%. Trade discount. Tell me, Yashvi. 10,000 का 10% लेना है कि नहीं लेना है? तो लेना ही है. TD है तो हर बार माइनस होगा ही. Which is how much? 1,000. Net amount 9,000. क्या होगा एंट्री? बार बार अम्ब्रेला पड़ा ना वहां पे रख दो. या टेल मी द एंट्री फॉर दिस. वेरी गुड. परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू चलेगा चलेगा अंदर बैठेगा. चलो परचेज अकाउंट डेबिट टू Manish account. How much? 9,000. Purchase account debit to Manish account 9,000 being goods purchased from Manish at 10% TD. At 10% TD. This is on 7th of July. ओके. टीडी है तो माइनस करना है. परचेज क्यों डेबिट किया? बिकॉज परचेज वाज एक्सपेंस. एंड मनीष कौन था? क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी. लाइबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. ओके. नेक्स्ट वन. सोल्ड गुड्स टू नितिन ऑफ 12,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट. क्या करना है? पहले तो 12,000 पे रुशिल. व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? 5% TD माइनस करना है. 12,000 पे लेस TD. 5% कितना होता है? 600. नेट अमाउंट क्या होगा एंट्री रुशिल? नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके. ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. तो 11,400 नितिन टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड on credit to Nitin at 10% TD. At 10% TD. This is on 11th. This is on 11th. This is on 11th. Next one. All videos should be on. Off videos will be out. Krish, Drumil. Chalo. Next one. Goods worth 900 are burnt by fire. क्या होना चाहिए एंट्री? वेरी गुड. लॉस बाय फायर क्यों डेबिट? क्योंकि लॉस है. लॉस बढ़ा. लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट. लॉस इंक्रीजेस सो डेबिट टू गुड्स लॉस्ट बाय फायर के जगह क्या लिख सकते हो? परचेज. लॉस बाय फायर टू गुड्स लॉस बाय फायर या लॉस बाय फायर टू परचेज. अमाउंट क्या होगा आपका? 900 रुपीज. 900 रुपीज बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर. बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर. बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर. Okay. Being goods lost by fire. ठीक है. Then 17th के बाद next one. तनय 20th drew from bank 4,000 for his personal purpose. 17th.
अरे सर हाँ यस तनय 17th बोलो मुझे received cash of 11,200 from Nitin in full settlement of his account. Why bank? कैश अकाउंट डेबिट कितना लेना था नितिन से 11,400 दिया कितना 11,200 तो क्या होगा एंट्री यस कैश अकाउंट डेबिट कैश आ रहा है कैश बढ़ा तो डेबिट देन डिस्काउंट अलाउ किया हमने कम पैसा आया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वन नितिन अकाउंट ओके कैश डिस्काउंट अलाउड टू नितिन हाउ मच इन कैश 11,200 how much in discount 200 and how much in Nitin 11,400 being Nitin's account settled being Nitin's account settled this is on 17 being Nitin's account settled being Nitin's account settled okay कैश टू बैंक પોતાના તો પર્સનલ બેંક માંથી બિઝનેસમાં નાખ્યા તો પછી કેશ ટુ કેપિટલ પર્સનલ સેવિંગ્સ અકાઉન્ટ થી નાખ્યા તો કેશ ટુ કેપિટલ પણ બિઝનેસના બેંક માંથી બિઝનેસમાં લઈ આવે તો કેશ ટુ બેંક ઓકે નેક્સ્ટ વન drew from bank yes Meg drew from bank 4,000 for his personal use yes very good drawings to bank पैसा ओनर लेके जा रहा है तो ड्रॉइंग्स बढ़ रही है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक वाई बैंक क्रेडिट बैंक में से दिया है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा घटेगा तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट या क्रेडिट द गिवर ट्रेडिशनल में क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर मॉडर्न में ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट बैंक घटा तो क्रेडिट 4,000 rupees 4,000 rupees this is cash withdrawn for personal use from bank being cash withdrawn for personal use from bank cash withdrawn for personal use from bank absolutely correct what next next one हाँ नेक्स्ट वाले में करेक्शन है पेड कैश 9,300 टू मनीष इन फुल सेटलमेंट उधर एक करेक्शन है मेक इट 8,300 9,300 दिया ना मेक इट 8,300 पेड कैश 8,300 टू मनीष इन फुल सेटलमेंट तो छतरी कौन यूज करनी है बारिश का सीजन है बिना छतरी का घूमती हो तुम दो दिन से बारिश नहीं गिरी तो छतरी रख देने का तो 4 महीना सीजन रहता है मालूम है ना जून टू सितंबर स्कूल में पढ़ा है ना व्हाट मैन यू आर आल्सो इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड इधर भी मैच रख देता है चलो बारिश किधर भी आ सकता है एवरी टाइम यू आर ऐसा भिग के ही आती हो मैं देखा है छतरी लेके ही नहीं आती हो चलो come to the next one correction करना जरा 23rd वाले में correction करना है yes it is not 9,300 it is 8,300 it is 8,300 okay yes Dharmil Doshi tell me Manish account to cash account. that's it Manish account to cash account to discount receipt. discount received आएगा ना hello why will discount received come because how much were we supposed to pay to Manish 9,000 he was our creditor for 9 but how much are we paying 8,300 we are paying more or less less right so 700 rupees is discount so क्या होगा एंट्री आपका Manish account debit why did we debit Manish
Why did we debit Manish? Liability decreases. Liability decreases. So debit to what? Cash account. Asset decreases. So credit to discount received account. देना था 9, दिया कितना? 8,300 and 700 is discount. Being Manish account settled. Being Manish's account settled. In Manish's account settled. This is 23rd one. Is this clear? Being Manish's account settled. घर वालों को समझ रहा है? Rules clear है? Rules. Why did we debit Manish? Because liability decreases, cash decreases, so credit, and discount is your income. 25. You tell me, Harsh Mehta. Paid house rent 2,500. So rent account to cash. No. What? No entry. That is also. House rent है. Office में. कौन सा रेंट है? हाउस किसका होता है? पर्सनल होता है ना, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए यहाँ पे. यहाँ पे क्यों दिख रहा है? नहीं, पैसे ले लिए. कहाँ से निकाला है पैसा? उसने बिजनेस में से लिया है. बिजनेस में से रोकड़ा निकाल के हाउस रेंट पे किया है. वरना वो घर के पैसे से घर का भाड़ा पे करेगा तो यहाँ पे दिखने वाला नहीं है. यहाँ पे पर्सनल ट्रांजैक्शन दिखते नहीं है. दिखने का मतलब क्या कि उसने बिजनेस में से पैसा निकाला है फॉर पर्सनल यूज. ओके, सो व्हाट विल बी योर एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश. वो घर पे कुछ भी करे, हाउस रेंट पे करे, स्कूल फीस पे करे, हॉलीडे पे जाए, वी आर नॉट बॉदर्ड. बिजनेस में से पैसा निकाला ना, तो कौन सा अकाउंट यूज करना है? ड्रॉइंग्स. बात समझ आई? ड्रॉइंग्स टू व्हाट? कैश और बैंक? कैश. बिजनेस में से कैश इज गोइंग आउट. So drawings क्यों डेबिट किया? ओनर इज द रिसीवर, या ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट टू व्हाट? कैश अकाउंट. ओके, हाउस रेंट. हाउस रेंट याद रखना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. बिजनेस का रेंट कौन सा होता है? ऑफिस रेंट. ऑफिस रेंट है. हाउस रेंट इज अ पर्सनल एक्सपेंस. बीइंग हाउस रेंट पेड. हाउस रेंट इज अ पर्सनल एक्सपेंस. Okay, keep that in mind. House rent is a personal expense, being house rent paid. Got it? Is it clear? Move ahead. Sold goods worth 12,000 to Dinesh, who paid us 8,000 rupees on account. Ashna, think. क्या होगा entry? The Dinesh account debit, cash account debit to sales. Very good. Is it on cash or credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly credit. आपने कितने का गुड सेल किया है? 12,000. उसने कितना पैसा दिया? 8,000. तो 8,000 ही मिला है, 4,000 मिलना बाकी है. डिस्काउंट मत पकड़ लेना उसको. इट्स ऑन क्रेडिट. ओके, गुड सेल कर रहे हो ना, और पैसा आना बाकी है. सो दैट्स योर डिस्काउंट. कब होगा? जब एक बार सेल कर दिया और बाद में 15 दिन बाद जब दिनेश ने पैसा दिया, कम दिया, तब डिस्काउंट आएगा, सीडी आएगा. इज दिस क्लियर? यहाँ पे ये सीडी नहीं है, ये क्या है? पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. सीडी रहेगा तो दिल स्पेसिफाई, या इन फुल सेटलमेंट. इन फुल सेटलमेंट या फिर सीडी दिया है ना, तो डिस्काउंट लेना. इज दिस क्लियर? तो एंट्री क्या बनेगी? यस आशना. Dinesh account debit, cash account debit to what? Sales account. How much in Dinesh? Dinesh? 4,000. Dinesh will be 4,000. Very good. Cash 8,000. To sales 12,000. Being goods sold to Dinesh. Partly on cash and partly on credit. Partly on cash and partly on credit. Is this clear? All of you got this? तो भी चले. Being goods sold to Dinesh is also fine. Narration में लोड मत लो, mention कर दो खाली. Okay.
बीइंग गुड सोल्ड टू दिनेश, दैट्स इट, दैट्स आल्सो इनफ। आपको समझ में आया वो ट्रांजैक्शन? सबको पहले 12,000 का गुड्स बेचा था, ओके, और कितना पैसा आया? 8,000। तो 4,000 अभी भी आना बाकी। व्हाई डिड वी डेबिट कैश एसेट? कैश एसेट इंक्रीजेस, सो डेबिट। व्हाई डिड वी डेबिट दिनेश? पार्टी। दिनेश कौन है हमारा? डेटर। डेटर मतलब एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट। माल बेचा, पैसा लेना बाकी है, एसेट बढ़ गया। और सेल्स काय को क्रेडिट किया? इनकम है, सेल्स इज इनकम, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। इज दिस क्लियर? इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, कैश दिनेश टू सेल्स। दिस इज ऑन आई थिंक 28. Bomik, tell me the next one. Wages paid 6,000. ड्रॉइंग्स क्यों? वेजेस बिजनेस क्या है? एंड वेजेस। तो सोचो अभी क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है? क्यों? ना ना ना, वेजेस आर व्हाट? एक्सपेंस। एक्सपेंस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, राइट? या फिर एक्सपेंस बढ़ेगा कि घटेगा वेजेस पे करोगे तो? जितना वेजेस दोगे उतना खर्चा बढ़ेगा, राइट? तो वेजेस एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, और कैश, कैश इज एसेट, कैश जा रहा है ना। तो जब भी कोई एक्सपेंस पे करोगे, एक्सपेंस बढ़ेगा और कैश घटेगा, बराबर? सो वेजेस अकाउंट डेबिट, wages account debit to what? Cash account. Wages account debit to cash account, how much? 6,000 rupees. Wages to cash, wages expense बढ़ा तो debit, cash asset घटा तो credit. Being wages paid, being wages paid. What if you pay salaries? Salary to cash, salary expense बढ़ेगा, cash घटेगा. Whenever you pay rent, what is the entry? Rent to cash. Whenever you pay commission, what is the entry? Commission to cash. Okay. Whenever you receive rent, if you receive rent, then cash to rent. You receive commission, then it is cash to commission. Cash बढ़ेगा, income बढ़ेगा. So this is on 31st. 31st. That sum is done. Any doubts? घर वाले clear? सेटलमेंट वाला समझा? इसमें खाली दो ही एंट्री इंपॉर्टेंट था, 25 और 28. 25 एंड 28. उसमें किसी को डाउट्स? 25 एंड 28 समझा? कर लो ये 25 एंड 28. देन टेक द नेक्स्ट सम. सम नंबर 29. 29. ऑल ऑफ यू टेक 29. 29th sum. हो गया एडमिशन? हो गया एनएम मिठी भाई? Yes, sir. Who got NM? Who got? I got Mitiba. You got MBC. Kavya. Anyone else? NM? Sir, I got NM. भानुशाली NM. ध्रुव भानुशाली NM. और Sir, Mitiba. कशिश मिठी भाई. और यहाँ पर जीत मेहता मिठी भाई. ओके. हीर पटेल मिठी भाई. हाउ मच आप? 90 और 93 पॉइंट. एनएम ना? भाई एनएम का सेकंड गुजराती आएगा थोड़ी. बोला
सेकंड लिस्ट एनएम का 20th राहायची सेकंड लिस्ट. बोला है क्या आएगा? यस सर. लिस्ट नहीं आया ना, खाली कट ऑफ डाला है ना ये टाइम, नाम नहीं दिया है ना स्टूडेंट्स का. जनरली एनएम का एक रहता है, मिठी बाई का 2 रहता है, बट सी मिठी बाई માં છે, एनएम માં નથી. ठीक है, यू वेट, बट डिफिकल्ट है थोड़ा, एकदम बॉर्डर लाइन पे एकदम. यस, एनीवन एल्स गॉट? किसी ने किया है सिक्योर सोमैया वगैरह में? सोमैया किसने सिक्योर किया है? मैंने सर केजे. अच्छा केजे. अच्छा, जो लोग ने प्लीज कॉलेज सिक्योर कर लिया है ना, एक बार एडमिशन या फीस भर दिया, प्लीज मेरे को मैसेज कर दो. ठीक है, पर्सनल मैसेज में अपना कॉलेज मेरे को भेज दो, व्हाट्सएप कर दो. ठीक है, ये आपका बैचेस फिर बाद में अभी कॉलेज वाइज डिवाइड हो जाएगा ना, इसके लिए. सो प्लीज मेरे को अपना कॉलेज, जिसका जिसका हो गया है, जिसका नहीं हुआ है वो ऐसा टेंटेटिवली मत भेजना. जिसने फीस भर के सिक्योर कर लिया है वो लोग भेजो मेरे को प्लीज. ठीक है, चेंज पहला अलाउ करता था बिफोर कोरोना, પણ લાસ્ટ યર થી બહુ સ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયા છે, તો એ ચેન્જ કરવા પણ નથી દેતા. એમ છે, રિક્વેસ્ટ કરીને બહુ હાથ પગ મારવા પડશે તો મળશે તને ચેન્જ કરવા. ओके, बट अदरवाइज इधर हो गया उधर हो गया, फिक्स है. पहले देते थे, अभी नहीं देते हैं. तो अब जिसका फिक्स हो गया है, फीस भर दिया है, प्लीज मेरे को मैसेज कर दो. ओके, आई हैव सिक्योर्ड दिस कॉलेज. ओके, विदाउट फेल. मेरे को व्हाट्सएप कर देना, फिर बैच बंद तक नहीं तो सब उल्टा सीधा बैच में घुस जाओगे, टाइम नड़ेगा तुमको कॉलेज का. तो प्लीज मेरे को कॉलेज ध्यान से मैसेज कर देना जिसका हो गया. चलो 29 सम ड्रॉ किया. किसके बुक्स में लिखना है बताओ देख के. अक्षय, श्री अक्षय, बराबर है. लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन, मुझे बताओ कशिश. श्री अक्षय started business with cash 90,000, building 1,50,000, borrowed from a friend Jayesh rupees 40,000. Borrowed from a friend Jayesh rupees 40,000. कशिश, क्या होना चाहिए एंट्री? Cash account, building account, Jayesh, to capital account to Jayesh loan account. Very good. Cash account debit, building account debit to capital account to Jayesh loan account. Absolutely right. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजें हो रही है, आपको समझ आ रहा है? देयर आर टू थिंग्स हैपनिंग. क्या दो चीज हो रही है? व्हाट आर द टू थिंग्स? आप लोन ले रहे हो. व्हाट इज द एंट्री फॉर टेकिंग अ लोन? कैश टू लोन. कैश एसेट बढ़ा, लोन लायबिलिटी बढ़ा. एंड ये बाकी कैश और बिल्डिंग कौन ला रहा है? ओनर. सो कैश डेबिट, बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल. दोनों चीज साथ में हो रहा है. यू हैव टू कंबाइन, राइट? यू हैव टू कंबाइन द एंट्री. अब सोचो टोटल कैश कितना लिखो. यस, एब्सोल्युटली राइट. टोटल कैश बिजनेस में कितना आ रहा है? 1,30,000. कैसे 1,30,000? 90 ऑफ ओनर प्लस 40 ऑफ लोन. ऐसा दिया कि आउट ऑफ विच 40,000 वॉज बोरोड. आउट ऑफ विच 40 दिया होता तो ऐसा दिया होता कि श्री अक्षय स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश 90, बिल्डिंग 150, एंड बोरोड out of which, out of the total cash, borrowed 40,000 from Akshay, from Ajay, Jayesh, जो भी है. Out of which 40,000 was borrowed. Out of which का मतलब क्या है? 90 में से 40 borrow किया, तो ओनर कितना लाया? 50. So total cash कितना हो जाता? 50 plus 40, 90. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. कहीं दिया out of which दिया है? हमने किया था, याद है? 9th सम में किया था, 10th सम. देखो एक मिनट आपको बताता हूँ. All of you take some number. See sum number 12. Sum number 12. Sum number 12 का सेकंड वाला देखो. Sum number 12 का सेकंड वाला, पेज 16. Sum number 12 का सेकंड वाला देखो क्या दिया. Commence business with cash 15, machinery 10, stock 10, horse 5. 1/3 of the cash was borrowed from Vishal. दिख रहा है? तो जो टोटल कैश है ना आपका 15, उसका 1/3, तो 5 was borrowed. तो ओनर कितना लाया था? 10. In that situation, owner got 10.
और बोरो किया था 5। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया आउट ऑफ विच 1/3 बोरोड, हाफ बोरोड, कुछ नहीं दिया है। मतलब ओनर तो 90 ला ही रहा है, ओनर तो 90,000 ला ही रहा है, उसके ऊपर हमने बोरो भी किया है। कितना बोरो किया है? 40,000। टोटल कितना बोरो हुआ? 1,30,000। तो कैश में कितना आएगा? 90 प्लस 40। ये समझा कि नहीं? पक्का? हेलो, there are 2 entries happening. Number 1, cash to Jayesh loan. कितना आएगा कैश टू जयेश लोन? अलग अलग करोगे तो लोन कितने का लिया? लोन 40। तो कैश बढ़ा 40 एंड जयेश लोन 40, बराबर। और ओनर ने क्या लाया? कैश बिल्डिंग टू कैपिटल। ओनर कितना कैश लाया? 90। ओनर कितने की बिल्डिंग लाया? 150। ओनर कितना पैसा लाया? 240। ये समझा भैया? दोनों चीज को अलग कर दो, अगर कंफ्यूजन है तो सेपरेटली करो और फिर कंबाइन करो। तो व्हाट आई हैव रिटन इज अ कंबाइंड एंट्री। व्हाट आई हैव रिटन इज अ, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ वी रोट द 2 स्प्लिट एंट्रीज? कैश बढ़ा, लोन बढ़ा 40,000, एसेट बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ा, एंड कैश बिल्डिंग टू कैपिटल। ये कौन लेके आ रहा है? ओनर लेके आ रहा है। समझा? तो कैश टू कैपिटल, बिल्डिंग टू कैपिटल, दैट इज कैश बिल्डिंग टू कैपिटल। ये पूरा क्लब करना है तो कैश कैश ऐड हो जाएगा। कैश कैश कितना दिखेगा आपको? 40 प्लस 90 कितना? 1,30,000। 1,30,000। इज दिस क्लियर? बिल्डिंग डेबिट हाउ मच? 1,50,000। 1,50,000। देन to Jayesh loan how much? 40,000. To Jayesh loan 40,000. To capital 2,40,000. 2,40,000. टोटल करके चेक कर सकते हो 280 280. It tallies. Debit is equal to credit. एंट्री का मतलब समझा? मुझे बताओ इसमें से ओनर क्या क्या लाया? ओनर क्या क्या लाया? कैश कितना लाया? 90 और बिल्डिंग, ये ओनर लाया। और बोरोइंग में कितना कैश आया? 40। इसमें से कौन सा लायबिलिटी इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है? कैपिटल इज इंटरनल, ये ओनर को देना है, और 40 इज एक्सटर्नल, ये बाहर वालों को देना है। ओके, और एसेट्स में कितना है? 280। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी। बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन, टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। ये स्टार्ट हुआ है बिजनेस आपका। घर वालों को समझा? ऑल ऑफ यू क्लियर एट होम? चलो डेट दे दो, नरेशन लिख दो। बीइंग कैश बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल, कैश कॉमा बिल्डिंग इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल एंड पार्ट कैश बोरोड, पार्ट कैश बोरोड। डेट होगा आपका 1st of October, नहीं 1st of August 2011. Next one, paid cash into the Bank of Maharashtra 80,000. Delisha, paid cash into the Bank of Maharashtra क्या होना चाहिए? Delisha, what should be the entry? Paid cash into the Bank of Maharashtra. So bank account and cash account. Very good. What should you debit? What should you credit? Bank credit. Bank credit? सोचो Bank debit debit. इसका मतलब क्या है? Paid cash into the Bank of Maharashtra का मतलब कैश पे किया है बैंक को, पे मतलब क्या? बैंक में डाला है। डाला है, तो बैंक इज द रिसीवर, राइट? सो डेबिट द रिसीवर एंड कैश इज गोइंग आउट। या फिर मॉडर्न में व्हाट इज बैंक? डेलिशा, इन द मॉडर्न कंसेप्ट व्हाट इज बैंक? रियल मॉडर्न, पर्सनल। अरे ट्रेडिशनल में पर्सनल, मॉडर्न में एसेट लायबिलिटी इनकम। मॉडर्न में एसेट है। एसेट है, तो बैंक में पैसा डाला तो बैंक बढ़ा कि घटा? बढ़ा। और कैश घटा ना, बिजनेस में से गया कैश। सो क्या डेबिट करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट।
to what? Cash account. Is this clear? Bank of Maharashtra to cash या bank to cash, how much? 80,000. यहाँ वालों को समझा सबको? Bank to cash 80,000 being cash paid मतलब cash deposited. Cash paid into bank मतलब cash deposited into bank. Cash deposited into bank. This is happening on 3rd of August. Is this clear? Next one, Soham Kenya. Credit, purchase furniture from Mohan and issued him a check of 10,000. GST is 5%. Soham, पहला क्या करना है आपको? CGST and SGST कितना होगा CGST? 2.5%. 2.5 और SGST 2.5. 2.5. करो कैलकुलेट. 10,000 का 2.5 करने के बदले पहले क्या करने का? 5%. What is 10,000 का 5%? 500. 500. तो 250 250. तो टोटल कितना होता है? 10,500. यस सोहम, आपने क्या किया है? फर्नीचर परचेज. फर्नीचर परचेज किया है और चेक दिया है. तो सोच के बताओ क्या एंट्री होगी. पूरी एंट्री बताओ विद जीएसटी. Yes. Furniture account debit. Furniture account debit. Absolutely right. Furniture account debit. To bank account. That's it. जीएसटी का क्या करना है? परचेज. Input GS. Input हाँ, GS input CGST account debit. debit. Then input SGST Input SGST account debit debit to to bank account. बैंक अकाउंट. एब्सोल्युटली राइट. कितना आएगा फर्नीचर में डेबिट? 10,000. 10,000. जीएसटी 250. 250 250. टोटल 10,500. 10,500 being furniture purchased. Being furniture purchased. Okay. Keep the videos on. Last time, Nemisha, Daksh, Heer, Drumil. All of you got this? Furniture input to bank. Why bank? Because you are paid by check. Furniture input to bank. Input क्यों? क्योंकि purchase किया. अच्छा, what is input GST? Expense or asset? Asset. Asset बढ़ा दो debit. What is furniture? Asset. बढ़ा दो debit. And bank? Asset. Bank बढ़ा के घटा? घटा. पैसा गया तो बैंक घटा तो credit. Okay. Next one. We'll answer this. Nemisha. Tell me, Nemisha. Credit purchases from Sohan 20,000 less 5% trade discount. पहले क्या करना है आपको? सर टीडी लेना है. टीडी माइनस करना है कि प्लस करना है? माइनस. माइनस करना है 5%. वेरी गुड. 1,000 यू गेट 90. अब मुझे बताओ क्या होगी. आपने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है फ्रॉम सोहन. सोहन अकाउंट टू परचेस अकाउंट. सोचो सोचो. दो अकाउंट बराबर है लेकिन डेबिट क्या क्रेडिट क्या? सोहन अकाउंट डेबिट एंड परचेस अकाउंट क्रेडिट. परचेज कैसे क्रेडिट होगा? व्हाट इज परचेज? परचेज आपका क्या है? बिजनेस का सबसे बड़ा एक्सपेंस है. परचेज इज द बिगेस्ट एक्सपेंस. परचेज क्या होगा? डेबिट. आपने कुछ खरीदा तो खर्चा बढ़ा तो परचेज एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड सोहन, हुई सोहन? लायबिलिटी. सोहन इज अ लायबिलिटी. क्रेडिटर है ना, उससे कुछ खरीदा, इज अ क्रेडिटर. क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी. लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट. गॉट इट? परचेज इज एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा दो डेबिट. सोहन इज लायबिलिटी. उधार बढ़ा तो क्रेडिट. मॉडर्न कंसेप्ट. परचेज टू सोहन कितना आएगा? 20 की 19? 19. TD is never recorded in the books. TD is never recorded in the books, being goods purchased
from Sohan. Being goods purchased from Sohan. Is this clear? Got it? Comfortable, all of you got this? Next one. बढ़ो आगे, देखो क्या दिया है 9th के बाद. Returned goods to Sohan 200 rupees. Return goods to Sohan 200. Kushagra, return goods to Sohan. Tell me what should be the entry. हमने goods return किए हैं Sohan. Sir, defective goods. हाँ, defective goods. Return क्या मतलब defective है. इसको क्या कहा जाता है जब हम goods return करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हम return कर रहे हैं. Sir, goods return account. Purchase return. Purchase. Sorry, purchase return. Purchase return. तो सोचो अभी क्या होगा entry. We return goods to Sohan. Sir, Sohan account will be debited and purchase Yes. return account will be credited Yes. Why Sohan debit because he is our creditor and creditor and we are बढ़ जाएगी? returning the product. So the So? amount we owe him is being debited. Very good. Will decrease. Absolutely right. And purchase return. Why credit? What is purchase return? Expense or income? Income because the Income. amount we have to pay is decreasing. Reduce. Purchase का amount कम हो जाता है. बराबर है? Purchase क्या है आपका? Purchase क्या है? Expense. Expense. Purchase returns क्या है? Income. Income. Purchase returns is like income. So Sohan to purchase returns कितना आएगा? 200 rupees. 200 rupees. Being goods returned to Sohan. Being goods returned to Sohan. Being goods returned to Sohan. Absolutely correct. Next one. सर इसमें परचेज रिटर्न पड़े तो वो डिफेक्टिव पीस होगा तो डिफेक्टिव ही है ना वो. वो एक्सपेंस में होगा. वो एक्सपेंस नहीं है. एक्सपेंस कब होएगा? जब तुमने खरीदा. जो माल खरीदा ना वो खर्चा हो गया. ये समझो तुम ट्रेडर हो, 50,000 का माल खरीदा, वो खर्चा है. 50 में से 10 डिफेक्टिव निकला तो हमारा नुकसान नहीं, हम तो उसको वापस कर रहे हैं. हम उसको उतना पैसा कम देंगे. समझा? वो अभी वो संभालेगा क्या करने का डिफेक्टिव. हमारा गलती से हुआ है तो हमारा लॉस है. तो वो लॉस बाय फायर टू गुड्स हम लोग करते हैं ना. लॉस बाय फ्लड्स, लॉस बाय फायर, दैट इज अवर एक्सपेंस. बट ये हमारा नहीं है. ये हमने क्या किया, उसको वापस कर दिया, तो लायबिलिटी कम कर दिया. मतलब उसको 50 नहीं देना, अभी 40,000 देना. इसके लिए सोहन लायबिलिटी घटा, परचेज रिटर्न इज लाइक इनकम. ठीक है, अपना एक्सपेंस कम हो गया 10,000. अब नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है सेटल्ड सोहन्स अकाउंट बाय एनईएफटी. काव्या, सेटल्ड सोहन्स अकाउंट बाय एनईएफटी. हु वाज सोहन बाय द वे? The creditor. Creditor था. Absolutely right. And can you tell me how much were we supposed to pay him? 18,800 after debit minus credit. Very good. Very good. How to find out? How to find out आपको एक क्रेडिटर को कितना पैसा देना है? क्रेडिट माइनस डेबिट. शॉर्टकट बताया था आपको, क्रेडिट माइनस डेबिट. या लॉजिकली भी सोचो, आपने कितने का गुड्स खरीदा था सोहन से? 19 का. और कितने का गुड्स रिटर्न किया उसको? 200 का. कितना पैसा देना बाकी है? 18,800. एकदम करेक्ट बोला काव्या ने. 19,000 minus 200, 18,800. Yes, Kavya, can you tell me the entry for this? Yeah, Kavya? Sohan account debit to bank account credit. एकदम correct. Why Sohan debit? Because creditor has a liability decreases. Very good. Liability decreases for debit. And why bank credit? Asset decreases for credit. Asset decreases. You made the payment, your asset decreases. एकदम correct बोला. This is happening on 11th. This is happening on 11th. Okay. Being Sohan's account settled. Sohan's account settled. All of you remember this? हमने किया हुआ है पहले भी.
क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड आउट हाउ मच आर यू सपोज टू पे अ क्रेडिटर, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट माइनस डेबिट किसका, क्रेडिट माइनस डेबिट उसका, बंदे का। दिख रहा है ये सोहन, क्रेडिट में 19 है, डेबिट में 200, तो कितना देना है नेट 18,800। डेटर से कितना पैसा लेना है, कैसे ढूंढोगे, डेबिट माइनस क्रेडिट। वेरी गुड, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, पोस्ट, ना ना ना, अलग अलग सेपरेट अकाउंट, बदाना सेपरेट अकाउंट। नेक्स्ट वन, क्रेडिट सेल्स टू अमित 6,000 लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट। जील कोठारी, मुझे बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें। 120 डिस्काउंट, टीडी माइनस करो तो आपको मिलेगा 5880। नाउ टेल मी द एंट्री। Amit account debit to sales account. वेरी गुड, व्हाई बट अमित डेबिट, Debit the receiver. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एकदम करेक्ट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। या फिर मॉडर्न में हु इज अमित, डेटर। डेटर बढ़ा कि घटा, बढ़ा घटा, जितना माल बेचोगे कस्टमर से पैसा लेने का बढ़ेगा, राइट। सो डेटर बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, एंड इनकम सेल्स, सेल्स इज इनकम। इनकम क्या हुई, जितना माल बेचोगे उतना इनकम बढ़ेगा, जितना सेल्स होगा उतना इनकम बढ़ेगा ना बिजनेस का। तो इनकम बढ़ा तो क्रेडिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। 5880, दिस इज बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमित, एकदम करेक्ट है। दिस इज हैपनिंग ऑन 13th, दिस इज हैपनिंग ऑन 13th। Next one, Daksh Patel. Amit returned goods of 500. Daksh Patel. Amit returned goods of 500. Daksh Patel. Yes, sir. Bolo. Amit returned goods of 500. Sales return. Yes. Sales return to what? To Amit's account. To Amit's account. Why sales return debit? What is sales return? What? A type of expense. Yes. Expense बढ़ा तो debit. And Amit? कौन था अमित? अमित कौन था? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। Was Amit guys? Debtor. Amit was our debtor. Debtor बढ़ा कि घटा? घटा. Sales returns is like expense, opposite of sales. Expense बढ़ा तो debit और debtor घटा तो credit. माल बेचा तभी debtor बढ़ा, माल रिटर्न हुआ तभी debtor कम हुआ, माल बेचा तभी इनकम हुआ, माल रिटर्न हुआ तो इनकम भी कम हो, एक्सपेंस बढ़ गया। So sales return to अमित, वापस आ गया पैसा। अब मुझे जरा देख के बताओ यहाँ पे, अमित को पैसा देना है कि लेना है अमित से? आर वी सपोज टू पे अमित और आर वी सपोज टू रिसीव फ्रॉम? पक्का पैसा लेना है अमित से कि देना है? लेना है। कितना लेना है? 5380। समझ में आया कैसे? 5880 माइनस 5, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू रिसीव। सो नेक्स्ट वाला पढ़ो, 16th वन, वही दिया है वहां। कशिश नहीं, सॉरी, साक्षी संघवी। साक्षी संघवी, टेल मी द नेक्स्ट वन। अमित पेड कैश फॉर द बैलेंस अमाउंट एंड अलाउड हिम अ कैश डिस्काउंट ऑफ 200। पहले तो बताओ साक्षी, अमित से कितना पैसा लेना है? साक्षी, अमित से कितना पैसा लेना है? हेलो। हेलो। हाँ साक्षी। यस सर।
अमित से कितना पैसा लेना है? Not audible. One second. Yeah. Tell me, धीर भानुशाली, अमित से कितना पैसा लेना है? Yes, sir. Amit से how much are we supposed to receive? Sir, 5,500. हाँ? 6,500. क्या बोल रहा है? अमित कौन था? अमित was our debtor, right? Yes. तो उससे कितना पैसा लेना है? देख के बताओ एंट्री में. Yes, sir. Sir, 5,880. वो तो सेल हुआ है, उतना लेना था. उसके बाद 5,380, sir. हाँ, डेबिट माइनस क्रेडिट. हाउ डू यू कैलकुलेट? डेटर से कितना लेना है? डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट में कितना है? 5880 माइनस क्रेडिट में कितना है? 500. तो कितना होता है? 5380. बराबर है. अब मुझे बताओ, डिड वी रिसीव फुल 5380? चेक. क्या कर रहे हैं हम लोग? डिस्काउंट अलाउ कर. कितना डिस्काउंट अलाउ किया? 200 rupees. तो उतना माइनस कर दो, 200. तो कितना मिला अपने को? 5180 मिला. बताओ मुझे, एंट्री बताओ धीर. Yes, sir. Sir, cash account यस, to कैश Amit अकाउंट. account. और बीच में क्या घुसाना पड़ेगा? Discount allowed account. हाँ, तो कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Amit. अमित अकाउंट. व्हाई कैश डेबिट? Sir, because cash is coming. कैश इज increasing. कमिंग इन, कैश इज इंक्रीजिंग. कितना है कैश अकाउnt डेबिट? 5180. कैश अकाउंट डेबिट 5180. हाउ मच इन डिस्काउंट? 200. 200. डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200. तो अमित 5380. डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट? व्हाई डेबिट डिस्काउंट? Because we have given him discount, so discount is an डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस. expense. सो डेबिट. एंड अमित को क्यों क्रेडिट किया? Because he is a debtor. बिकॉज इज अवर डेटर. डेटर बढ़ा तो सॉरी, डेटर घटा तो क्रेडिट. डेटर घटा तो क्रेडिट. ऑल ऑफ यू गॉट योर? अमित से कितना पैसा लेना था? हाउ डू यू कैलकुलेट? डेबिट माइनस क्रेडिट. डेबिट माइनस क्रेडिट. कितना था डेबिट? डेबिट में कितना था अमित का? ये रहा 5880 माइनस क्रेडिट. इतने का रिटर्न कर लिया ना तुमने. बेचा था 5880, उसमें से 500 का तो वापस आ गया. तो कितना पैसा लेना है? 5380. अब चेक करो वहां पे 5380 पूरा आ रहा है क्या? 200 रुपया क्या है? डिस्काउंट. तो 5180. कैश आया, कैश बढ़ा. व्हाट इज डिस्काउंट अलाउड? एक्सपेंस. एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड व्हाट इज अमित? डेटर. डेटर बढ़ा कि घटा? घटा तो क्रेडिट. कैश डिस्काउंट टू अमित 5180, 200 and 5380. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट वन, ध्रुवी शाह. टेल मी, goods taken by Akshay for his personal use. ध्रुवी, goods taken by Akshay for his personal use. ध्रुवी शाह, क्या होगा एंट्री? सोचो. अक्षय कौन है पहले तो? Debtors. अक्षय. ऊपर नाम पढ़ो. Who is अक्षय? अक्षय कुमार, बेल बॉटम. कौन है अक्षय? हेलो ध्रुवी. ध्रुवी शाह, पहले तो माइक ऑन करो और आंसर करो मुझे. बोलो, हु इज अक्षय? ध्रुवी शाह, आर यू देयर? Yes, sir. हु इज अक्षय? ऊपर पढ़ो नाम. किसके बुक्स में लिख रहे हो?
He's the owner. ओनर, हाँ अभी सोचो, ओनर गुड्स लेके गया पर्सनल यूज के लिए, तो क्या होगा एंट्री? Drawings account to cash account. ड्रॉइंग्स अकाउंट तो बराबर बोला, ड्रॉइंग्स बढ़ा तो डेबिट, बट व्हाट इज इट? टू व्हाट इज टेकिंग अवे? चेक Goods. गुड्स, तो क्या लिखने का? गुड्स विड्रॉन Withdrawn for purchase. फॉर पर्सनल यूज. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की जगह और क्या यूज कर सकते हो? परचेज अकाउंट. ड्रॉइंग्स टू गुड्स या फिर परचेज. ध्यान नहीं है, टेस्ट में बैंड बजेगा, बैंड, इसलिए आज मैं ध्यान से पूछ रहा हूँ हर एक से, सबका लेवल पता चल रहा है. बहुत हालत खराब है, 3 दिन सॉलिड मेहनत करना पड़ेगा. कम से कम आई टोल्ड यू, कितना ट्रांजैक्शन लिख के करना है? 60 ट्रांजैक्शन, 60 ट्रांजैक्शन कम से कम लिख के करना है. ट्रांजैक्शन है सम्स में. 60 ट्रांजैक्शंस यू हैव टू राइट एंड डू खुद से, तो आएगा टेस्ट में. वरना टेस्ट में आउट ऑफ 30 लैंड अप ऑन 7, 3, 4, 5. टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. ड्रॉइंग्स टू गुड्स या ड्रॉइंग्स टू परचेज, ध्यान से. ओके, व्हाई ड्रॉइंग्स डेबिट? ड्रॉइंग्स बढ़ा. और व्हाई गुड्स क्रेडिट? गुड्स घटा. या परचेज, क्योंकि परचेज एक्सपेंस घटा. ये गुड्स आप बेचने वाले नहीं. ओके, सो परचेज एक्सपेंस घट गया. कितना आएगा? 500 रुपीज. दिस इज 500 रुपीज. ओके, बीइंग गुड्स withdrawn for personal use. Being goods withdrawn for personal use. Next one. Check. Paid for postage and electricity bill 900. Yes, here Gandhi. What should be the entry? Here Gandhi. Paid for postage and electricity bill. बोलो entry. Simple. Postage and electricity bill पे किया. Come on, so much time. What is postage? Postage मतलब postal department का खर्चा. Postage. So postage is expense. Postage is expense. And what is electricity? Expense. Expense only. Here Gandhi. Yes. Don't know. No, I know. So why are you? What are you thinking? Tell me the entry quick. Expense pay किया है तो क्या होना चाहिए entry? What entry you pass when you pay salary here Gandhi? Salary to salary. So what entry will pass when you pay electricity? Postage. Ah, Can we write postage. sundry expenses? No, you can, but यहाँ पे postage use करो. Postage separate account है. You can write sundry also, no problem. छोटा expense. Electricity bill account. हाँ, electricity bill लिखो या simply electricity लिखो. Postage account debit, electricity debit to what? Cash. Cash. So simple. Why so much time you are taking? Postage is expense, electricity is also expense. दोनों expense क्या है? बड़ा कि घटा? बड़ा. बड़ा. Expense बढ़ा तो debit. Okay, कितना आएगा postage? 200. 200. Electricity 900. 900. Total 1100. 1100. Okay, cash घटा तो credit. Combine करना है ना, दो expense साथ में हुआ. Postage की जगह you can write sundry also. Postage is also fine. Being postage and electricity expense paid. Postage and electricity expense paid. दोनों expense pay किया, expense बढ़ा तो debit. This is happening on 18th one. Next one. Sent a telegram of 30 to Sohan to supply goods of 9,000 immediately. The telegram also falls under the category of postage. Telegram also falls under postage expense. तो ये भी postage expense है.
बट मुझे बताओ, हमने उसको क्या बोला है कि सप्लाई करो गुड्स, तो ये क्या हुआ एक तरह का नो एंट्री हुआ. क्यों? Did he supply the goods? Did we make the Not yet. payment? It is like No. an order. ऑर्डर प्लेस का कोई एंट्री होता नहीं. तो एंट्री किसकी आएगी? खाली वो 30 रुपए. 30 रुपया क्या हुआ? Expense. एक्सपेंस. कौन सा एक्सपेंस हुआ ये? Postage. पोस्टेज. दिस फॉल्स अंडर पोस्टल डिपार्टमेंट का सब. टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, स्पीड पोस्ट, कुरियर, ये सब किस में जाता है? पोस्टेज एंड टेलीग्राम. इज दिस क्लियर? सो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, वापस पोस्टेज अकाउंट डेबिट. You can also write sundry expense for this. Postage account debit to what? Postage to cash. Postage account debit to cash account. Okay. Postage account debit to cash account. How much? 30 rupees. Being telegram charges paid. Being telegram charges paid. What about that order जो सोहन को दिया है? नो एंट्री. उधर ब्रैकेट में लिख देने का नो एंट्री फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर. नो एंट्री फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर. नो एंट्री फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर. खाली आपने उसको इंटीमेट किया कि भैया गुड सप्लाई कर देना. क्या उसने गुड सप्लाई किया? क्या हमने पैसा दिया? नहीं. तो सोहन वाले पार्ट का कोई एंट्री नहीं आएगा. लेकिन ये क्या है? टेलीग्राम भेजने में क्या हो गया? हमारा खर्चा हो गया. खर्चा हो गया तो रिकॉर्ड करना है. विच खर्चा? पोस्ट, टेलीग्राम, पोस्टल, स्पीड पोस्ट, पोस्ट कार्ड, कुरियर, ओके, इनलैंड लेटर, ये सब किस में जाएगा तुम्हारा? पोस्टेज. पोस्टेज या फिर सन्ड्री. सन्ड्री में भी डाल सकते. समझ में आ रहा है? अविष्का, टेल मी द नेक्स्ट वन. Purchased a laptop and printer of 41,000 from Keshav and paid him cash 21,000. GST is 28%. Avishka, what's your first step? Adding CGST and SGST. किस पे ऐड करना है? 21 पे कि 41 पे? 21,000. Are you sure? लैपटॉप कितने का है? 41,000. पूरे पे ही ऐड करना है. 21 पे क्यों? 21 क्या है? Only the cash जो हम कैश पार्ट. तो बाकी का क्रेडिट पे. क्रेडिट. तो जीएसटी खाली कैश पे आता है? नहीं, पूरा क्रेडिट पे आता है कि दोनों पे आता है? दोनों पे. दोनों पे आता है. जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट. तो दोनों पे करना है. पहले ही कर दो. 41,000 का 14% तो कितना होता है ये? 4100 प्लस 1640. तो आई थिंक 5740. 5740 बराबर है. 5740 तो 41 का हो जाएगा 52,480. 52,480. 52,480. That's the total amount with GST. Okay. इसमें से ताबड़तोड़ कितना पैसा दिया? एंड पेड कैश हाउ मच? 21. सो कैश कितना दिया? 21. तो बाकी का क्या हो गया? क्रेडिट. कितना होगा क्रेडिट में? इसमें से 21 माइनस करो. 31,480. 31,480 इज ऑन क्रेडिट. गॉट इट? समझ रहे घर वाले? या बोलो. यहाँ पे we can use office equipment account, right? Yes. What are you buying? Laptop and printer. Yes, you can use office equipment. Okay. Yeah, simply laptop and printer. So laptop and printer is also fine. Okay. Yeah, office equipment भी चलेगा. Yes. कौन था? Tell me, Avishka, entry for this. Laptop Avishka? and printer account debit Why laptop and printer debit? because it's an asset. Asset increases, so debit. Yes. Input CGST account debit. Yes. And Yes. input SGST account debit. एकदम करेक्ट. बोथ आर एसेट्स. एसेट बढ़े तो डेबिट,
to Keshav and Co account. Very good. To Keshav and Co. And that's it. To cash account. To cash also. Because how are we buying? Cash credit or partly cash, partly credit? Partly cash, partly cash. Partly cash, partly credit. Very good. Tell me, Avishka, the amounts, laptop and printer. How much? 50. What was the value of laptop? 41,000. 41 with अभी GST कितना लग गया उस पे 5740 is input. ये देखो ना, ये रहा input. ये इधर इनपुट में लिखने का, ये इनपुट SGST इधर इनपुट में लिखने का, SGST 5740 5740. To how much in Keshav and how much in cash? 31,480 in Keshav. In Keshav. ये देना बाकी है कि दे दिया है? देना बाकी है. देना बाकी है. And cash credit 21. Why did we credit cash? Cash decreases. Why did we credit Keshav? Liability. Liability increases so credit. तो केशव कौन है हमारा? क्रेडिटर है. कितना पैसा देना बाकी है? 31,480. जब चुकाओगे तब क्या एंट्री करोगे? केशव टू कैश. लाइबिलिटी कम होएगा और कैश कम हो जाएगा. जब पे करोगे तब. अभी फिलहाल क्रेडिट करके रख दो. पार्टली कैश, पार्टली क्रेडिट. All of you got this? Once again, what is laptop? Come on, tell me, what is laptop? Asset. Asset बढ़ा दो, debit. Input, input क्या है? Asset. Asset और बढ़ा. Okay, टैक्स भर दिया, काम आएगा फ्यूचर में, so debit. To केशव कौन है? Liability. Creditor. बढ़ी तो credit. And cash? Asset. Asset घटा तो credit. Okay, being laptop and printer purchased from Keshav, partly on cash, partly on credit. Partly on cash, partly on credit. This is 21st. Next one. ध्यान से पढ़ना सब लोग. चारवीं संघवी. Tell me the next one. Paid life insurance premium on the life of Mr. Akshay by check 4,000. सोच के बताओ चारवीं. Drawings account to bank account. Very good. एकदम correct. एकदम correct. Why drawings? Because life insurance premium on Akshay, so that is personal. Personal, right. All of you got here? Life insurance premium. यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? नहीं. तो यहाँ पे दिखने का मतलब क्या? कि उसने ये पैसा बिजनेस में से निकाला है. समझा? अभी अभी आया ना हाउस रेंट. उसने ये पैसा बिजनेस में से निकाला है. वेरी गुड. एंड व्हाई बैंक? Check. मतलब बैंक से निकाला है उसने. ओके, वेरी गुड. सो ड्रॉइंग्स टू बैंक, हाउ मच? 4,000. ड्रॉइंग्स टू बैंक, sorry, 4,000 being life insurance paid, being life insurance premium paid. Yeah, life insurance paid. This is how much? 27th crore. 27 crore. Very good. Next one थोड़ा हटके है. 29. स्टार मार्क करना 29th को. 29th को स्टार मार्क करना और 20th को भी स्टार मार्क करना. 20, 29. देखो क्या दिया है. 29. Paid telephone deposit for a new telephone connection by check 4,000. अब टेलीफोन डिपॉजिट क्या होता है ये तुमको अभी आता नहीं है. MTNL में होता था. अभी MTNL का लाइन जिसके पास होगा उसको शायद आइडिया होगा. अभी MTNL लाइन हार्डली एनीवन यूजेस. सो MTNL का लाइन में क्या होता था, जब आप टेलीफोन लेके आते थे ना डब्बा, तो उसका डिपॉजिट देना पड़ता है इसको MTNL को. फिर जब आप डब्बा रिटर्न करोगे ना वो लैंडलाइन वाला, तब आपको डिपॉजिट वापस मिल जाता है. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर में भी होता है. आपके बिल्डिंग में मीटर लगाते हो ना, तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर का डिपॉजिट रखना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है. तो कुछ खराब हो गया तो काट लेगा वहां से, ऐसा. और फिर जैसे आप मीटर सरेंडर करोगे आपको डिपॉजिट का पैसा वापस मिल जाता है. ऐसा होता है.
तो डिपॉजिट, इज इट अवर एक्सपेंस और इज इट अवर एसेट? एसेट. जैसे फिक्स डिपॉजिट अपने को वापस पैसा मिल जाएगा, वैसे टेलीफोन डिपॉजिट इज ऑल्सो एसेट. वापस पैसा, जैसे टेलीफोन वापस दोगे पैसा मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मीटर वापस करोगे पैसा मिल जाएगा. ओके, तो डिपॉजिट, ये डिपॉजिट इज नॉट योर एक्सपेंस, डिपॉजिट इज योर एसेट. ओके, तो अभी सोचो आपने क्या पे किया? टेलीफोन डिपॉजिट पे किया बाय चेक. टेलीफोन डिपॉजिट पे किया बाय चेक. अश्विन, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द एंट्री? अश्विन, टेलीफोन डिपॉजिट पे किया है, सोचो. Telephone deposit account. Yes, telephone To bank deposit account. account debit to bank Bank account. It is as good as you are buying an asset. You are buying an furniture खरीदते तो क्या करते हो? Furniture to bank. तो डिपॉजिट खरीदा है, डिपॉजिट टू बैंक. क्यों एक्सपेंस नहीं है? समझ में आया? ये गया नहीं है, ऐसा नहीं है दे दिया तो गया. वापस जब सरेंडर करोगे टेलीफोन मीटर तो वापस मिल जाएगा, पैसा आ जाएगा. तो पैसा वापस आने का क्या एंट्री रहेगा? कैश टू टेलीफोन डिपॉजिट. कैश टू टेलीफोन डिपॉजिट. कैश बढ़ा, डिपॉजिट घटा. अभी क्या हो रहा है? डिपॉजिट बढ़ रहा है और कैश घट रहा है. ओके, डिपॉजिट बढ़ रहा है और कैश घट रहा है. आप जगह भी रेंट पे लेते हो तभी आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है. आपने सुना होगा, भाड़े पे जब जगह लेते हो रेंट पे, तब रेंट तो देना है हर महीने का, और एक डिपॉजिट भी रखना पड़ता है, फिक्स डिपॉजिट ओनर के पास. सुना है कि नहीं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपीज, यू हैव टू कीप इट एज डिपॉजिट. दैट इज ऑल्सो एसेट. दैट इज रेंट डिपॉजिट. दैट इज कॉल्ड एज रेंट डिपॉजिट. मतलब आपने जगह में कुछ तोड़फोड़ कर दिया तो डिपॉजिट में से काट लेगा. सेफ्टी डिपॉजिट बोलते हैं उसको. बहुत जगह पे होता है. आप क्लब में किधर मेंबरशिप लेते हो, जिम खाना में किधर जाते हो, जिम में जाते हो, जिम में भी कुछ कभी डिपॉजिट ले लेते हैं आपसे. तो कुछ इक्विपमेंट आपने डैमेज किया तो वो डिपॉजिट में से काट लेंगे. ओके, अगर आपके कुछ नहीं किया तो वापस मिल जाएगा पूरा पैसा. सो डिपॉजिट, एनी टाइप ऑफ डिपॉजिट, याद रखना, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन एसेट. सो टेलीफोन डिपॉजिट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट. टेलीफोन डिपॉजिट टू बैंक कितना? 4000. ओके, डिपॉजिट एसेट बढ़ा, बैंक एसेट घटा. बीइंग टेलीफोन डिपॉजिट पेड. Being telephone deposit paid. This is on 29. And the last one, audit fees paid for the next month in advance by check. याद आ रहा है कुछ? क्या लिखने का? Audit fees लिखने का कि prepaid audit fees लिखने का? Why prepaid audit fees? Why? Because Advance. next month का एडवांस में. एक्सपेंस का टाइम ना है तब तक डेबिट नहीं करने का. तो प्रीपेड ऑडिट फीस. प्रीपेड ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट. प्रीपेड ऑडिट फीस टू बैंक अकाउंट कितना? 4500. प्रीपेड ऑडिट फीस टू बैंक 4500 being audit fees paid in advance. Audit fees paid in advance. All of you got this? Being audit fees paid in advance. Paid in advance. Okay. Now you take the last problem. Some number. सम नंबर 14 का, सम नंबर 14th का डू 1 4 5 7 8 9. बस 1 4 5 7 8 9. सम नंबर 14 का 1 4 5 7 8 9. 9 तक करो, खुद से करो, एंड देन वी स्टॉप. सम नंबर 14 का 1 4 5 7 8 9. 1 4 5 7 8 9. 14th sum. 1 4 5 7 8 9. खुद से करो. You can skip the narrations. You can skip the narrations.
14 1 4 5 7 8 9 दिमाग लगाओ, खुद से करो सब लोग, डू इट ऑन योर ओन। यहां तक का सिलेबस है आपका टेस्ट के लिए, बराबर से प्रिपेयर करना, लिख के करना सॉल्व, ठीक है। 1 Sir, 4 which 5 sum? 7 8 14th sum, 14 अमया, श्री अमया, 14th sum 1 4 5 7 8 9।
14578. हाँ 9 till 9. One, 4, 5, 7, 8, 9. सर अगर पॉइंट पर आया तो इन्हें राउंड ऑफ कर देना। हाँ
ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, बैंक यूज करना है. चेक 14579 चेक. रॉन्ग है. अच्छा हाँ, एक मिनट, डिस्काउंट मेरा रॉन्ग है. CD is 5% ना. 713 और ये कितना आएगा तुम्हारा 14,537. हाँ बोलो. बैंक का अच्छा परचेज किया है क्या? क्रेडिटर, सॉरी. This would be Shinde to bank to discount receipt. This would be 14,250 13537 713. क्रेडिटर था बराबर. ओके, बाकी एंट्रीज चेक कर लो. Check all the transactions. Okay. Who got all correct? Calculation. Entry. अब समझा? क्रेडिट माइनस डेबिट. क्रेडिटर है तो कैसे ढूंढना है? क्रेडिट माइनस डेबिट. और सेटल करना है तो पार्टी टू बैंक और विद डिस्काउंट रिसीव्ड है. घर वाले क्लियर? जिसको नहीं आ रहा था एंट्रीज, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड. 60 transactions. Yes, Kavya, you have doubt? No, sir, that was by mistake. Sorry. No, sir, that अच्छा, was you by got full. mistake. Okay. अच्छा, okay. चलो, नहीं, आज तक का पोर्शन जो किया है that is there for the test. Is this clear? बराबर से प्रैक्टिस करना. कितना ट्रांजैक्शन लिख के करना है? 60. मिनिमम 60, मैक्सिमम योर चॉइस. ओके, लिख के राइट एंड डू इट. सैटरडे लेक्चर है, संडे टेस्ट है. यू हैव डाउट्स, यू वेट, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय. Bye, sir. Thank you.